بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إخوتي الأعزة، أولا نشكر الله عز وجل على أنه وفقنا بأن نجتمع في هذه الجامعة الإسلامية الدينية العريقة الشهيرة، الجامعة الإسلامية عشاءة العلوم الكلكوة. وقد حضرنا بمناسبة وفاة رئيس ومؤسس هذه الجامعة الشيخ غلام محمد الوستانوي رحمه الله رحمة واسعة. ولا شك أن هذه الجامعة مثل البحر يجود بسخائه ويجود بكرمه، والمسؤولون عن هذه الجامعة وخاصة رئيس الجامعة الذي يرأس هذه الجامعة في هذا الوقت له دور بارز في إنشاء المهارات وتطوير المهارات في الطلاب، وهو يغتنم الفرص ولا يضيعها. فقد حضرنا بمناسبة التعزية والدعاء والملاقاة فقط، ولكنه أمرنا أن نجتمع معكم وأن نتكلم معكم وبين أيديكم، فاغتناما لهذه الفرصة وامتثالا لأمره وامتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرت أمامكم اذكروا محاسن موتاكم، أرى من المناسب مع أن الوقت قليل والعمل جليل، ولكن مع ذلك سأقدم أمامكم بعض الكلمات، وستكون هذه الكلمات مفيدة لكم إن شاء الله عز وجل. فقبل التقدم في الكلام أدعو الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوتي الأعزة، لعل هذا الاجتماع اجتماع مفاجئ. كنتم مشتغلين في دروسكم في صفوفكم بكل نشاط وحماسة، ولعل الأمر وصل إليكم بالمفاجأة أن تجتمعوا في المسجد، وسأحاول أن اجتماعنا هذا سيكون اجتماعا مفيدا لنا ولكم إن شاء الله عز وجل. وهذه الكلمات البدائية التي تكلمت بها باللغة العربية لأن الفقير المرحوم الشيخ غلام محمد الوستانوي رحمه الله رحمة واسعة كانت له علاقة وتيدة وصلة وشيدة باللغة العربية، وقد رأيته مرات وكرات مع مرضه المنهك ومع أشغاله المتراكمة حينما يسمع عن أي حفلة عربية أو اجتماع عربي كان يشارك في ذلك الاجتماع وفي تلك الحفلة، وكثيرا ما يرغب الطلاب على تعلم اللغة العربية والتكلم بها والمهارة والبراعة فيها. حتى حينما زرنا هذه الجامعة بمناسبة عقد الدورة التدريبية فقد قدم الاقتراح أن هذه الدورة ستكون في هذه الجامعة في كل عام وفي كل سنة. فإخوتي الأعزة، أنا أعرف أن فيكم كثير من الطلاب المبتدئين، فأكتفي بهذه الكلمات العربية وأبدأ باللغة الأردية. طلبة इकराम, ये मुख्तसर जो गुफ्तगू आप लोगों के सामने अरबी में हुई, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस कौल पर या उस हदीस पर अमल के लिए है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उज़कुरू महासिन मौताकुम।
जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनकी अच्छाइयों को याद करो, याद किया जाए। और आप हजरात, जब से हजरत का इंतकाल हुआ है उसके बाद से लेकर अब तक बहुत सी चीज़ें आपके सामने आई होंगी। हजरत की खुसूसियात, सिफ़ात, इम्तियाज़ात, कमालात और भी बहुत सी चीज़ें। बहरकैफ इन चीज़ों के ज़िक्र करने का मकसद ये है कि हम उसको अपना उसवा बनाएं, हम उसको अपना नमूना बनाएं, हम उसकी रोशनी में अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करें और जिस तरह उन्होंने जो है खिदमत अंजाम दी है हम भी ये कोशिश करें कि उनके नक्श कदम पर चलते हुए दीन का और इस्लाम का काम करें। बहरकैफ बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जो बात मैं ख़ास तौर पे इस वक्त आपके सामने कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब भी हजरत से मुलाकात हुई, बात हुई, तो हमने अरबी के हवाले से हजरत मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी रहमतुल्लाहि अलैहि को बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद पाया। और आप में से जिन्होंने उनकी मजालिस में शिरकत की होगी, उनकी नशिस्तों में शिरकत की होगी, तो वो अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे कि जब भी अरबी का जिक्र आता तो हज़रत खुद भी जो है अरबी में तलबा की हिम्मत अफजाई के लिए गुफ्तगू करते और बारहा जो है तलबा को ये तलक़ीन करते कि वो जो है अरबी में महारत हासिल करें, अरबी में मेहनत करें। तो इस वक्त इस नशिस्त का हासिल ये है कि अगर हमने इस नशिस्त से ये पैगाम ले लिया कि हमें भी इंशाअल्लाह अरबी ज़बान में महारत हासिल करनी है, हमें भी जो है उसमें जो है कमाल पैदा करना है, तो आज की ये हमारी नशिस्त इंशाअल्लाह कामयाब। बहरकैफ जब भी अरबी के हवाले से गुफ्तगू होती है और एक तालिब इल्म जब हिफ्ज़ से या दीनियात से फारिग होकर अरबी अव्वल में दाखिला लेता है तो एक तमन्ना, एक आरज़ू, एक जोश, एक जज्बा, एक वलवला उसके अंदर होता है कि अब तो मैं अरबी दर्जे में जा रहा हूँ, अब तो मैं अरबी मदरसे में पढ़ रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि मुझे भी जो है अरबी आ जाए, मैं भी अरबी में गुफ्तगू करूँ, मैं भी अरबी में अपने माफी ज़मीर को अदा करूँ और मैं भी जो है अपने अरबी में जो है कुछ अल्फाज कहूँ और कुछ कलिमात जो है लिखूँ। जाहिर सी बात है आप में से सबका ये इरादा है कि नहीं भाई? बताइए किस किस का इरादा है कि वो अरबी में बात करना चाहते हैं, अरबी में लिखना चाहते हैं? माशाअल्लाह सब लोगों ने हाथ उठाया है। अल्लाह के घर में, अल्लाह की जो ये घर है जहाँ पर हज़रत मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने 12 अरबी के फ़ज़ाइल को बयान किया होगा, 12 जो है अरबी की नशिस्तों में शिरकत की होगी, तो उनकी महासिन को याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि उनका जो मिशन है, उनकी जो तड़प है, उनका जो जज्बा था, उनका जो वलवला था, उनका जो मकसद था, हम उसको आगे बढ़ाएं इंशाअल्लाह। और उसके लिए सबसे बेहतर जो एक अहम चीज़ है ये कि हम अरबी ज़बान में महारत हासिल करें। इस वक्त जिन तलबा को जमा किया गया है, जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये अरबी अव्वल से लेकर अरबी चहारुम तक के तलबा, और ये जो वक्त है आपका, यही असल में अरबी में महारत हासिल करने का वक्त है। जो तलबा हैं मदारिस में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए कोई बहुत ज्यादा इजाफी मेहनत की जरूरत नहीं है। भाई बात समझ में आ रही है? मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? माशाअल्लाह जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अरबी जो मदारिस के तलबा हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जो है अलग से मेहनत की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि जो मदारिस में अरबी अव्वल में, दुअम में, सुअम में पढ़ रहे हैं वो उर्दू से वाकिफ़ हैं और उर्दू में बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो अरबी के होते हैं। और एक बहुत ही अहम बात बता के मैं जो है अपनी बात को ख़त्म करूँगा, इसलिए कि वक्त बहुत कम है। अल्लाह अगर तौफीक देगा तो इंशाअल्लाह कभी तफसील से बात होगी। देखिए, जब हम चाहते हैं कि हम अरबी में बोले तो ये बात जहन में आती है कि कैसे हम बोलेंगे, होता है ना भाई, कैसे हम बोले, क्या तरीका हो, कैसे हमें शुरू करना है, कहाँ से हमें आगाज करना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है। और इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि जिस तरह मौलाना गुलाम मोहम्मद वस्तानवी साहब रहमतुल्लाहि अलैहि अरबी के हवाले से फिक्रमंद थे, उसी तरह हज़रत मौलाना हुज़ैफ़ा वस्तानवी दामत बरकातुहू भी माशाअल्लाह अरबी के हवाले से फिक्रमंद रहते हैं और वक्तन फ़वक्तन अलग अलग निज़ाम यहाँ पे चलता रहता है। बस एक जो है बहुत ही अहम बात की तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा, आप लोग गौर से सुनेंगे। देखिए, हम में से हर एक ने कोई ना कोई ज़बान सीखी है कि नहीं सीखी भाई? कोई ना कोई ज़बान, और इसमें तो कोई शक नहीं कि दुनिया में जो भी आता है वो मादरी ज़बान सीखता है। अब आप बताइए कि मादरी ज़बान इंसान कितने अरसे में सीखता है?
बताइए भाई। अरे दूसरों के बारे में गौर करने की जरूरत नहीं, हम अपने बारे में गौर करके बता दें कि कितने जमाने में सीखता है। 10 साल, 8 साल, 6 साल, 4 साल, कितने साल? 2 साल। बस यहाँ पर आपको ये समझना है कि जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त ना उसमें शऊर होता है, ना उसको समझ होती है, और ना ही पैदा होते ही वो दुकान में जाके कलम कापी खरीद के लाता है ताकि मुझे मादरी जबान के जो है अल्फाज मानी याद करने हैं, कवाइद याद करने। करता है कैसा? बल्कि क्या करता है वो अपने घर में रहते रहते 2 साल तक सुनता है और फिर बोलना शुरू कर देता है। तो क्या वो जबान जो हमारी मादरी जबान है, हमने अपने उस उम्र के मरहले में जो हमारे गैर शऊरी जिंदगी का मरहला था, जिसमें हमें शऊर नहीं था, जिसमें हमें समझ नहीं थी, उस मरहले में भी अगर कोई जबान हम 2 साल में सीख सकते हैं, तो क्या अरबी जबान हम शऊर के मरहले में आकर 2 साल में नहीं सीख सकते? बताइए भाई, सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते? यकीनन सीख सकते हैं। और एक अजीब बात मैं आपको बताऊं कि हमारा जो ये निज़ाम है, हमारा जो ये निसाब है, वो इस तरह तरतीब दिया गया है कि अगर कोई तालिब इल्म अरबी अव्वल से लेके अरबी सुवम तक या ज्यादा से ज्यादा अरबी चहारुम तक निसाब की जो किताबें हैं उसको वो मुकम्मल पढ़े, मुताले मुज़ाकरे के साथ, जिस दिन वो अरबी चहारुम से या अरबी सुवम से फारिग होगा, अरबी चहारुम सुवम का इम्तिहान देगा, वो इंशाअल्लाह नहू का, सर्फ का और अरबी का भी माहिर होगा। क्यों? इसलिए कि अरबी सुवम चहारुम के बाद न नहू की किताब है, न सर्फ की किताब है, और उमूमन अदब की भी किताब नहीं है। जाहिर सी बात है, जिस चीज की जरूरत नहीं है उसको बाकी नहीं रखा जाता है। हमारे अकाबिरीन का हुस्न ज़न ये है कि जब तालिब इल्म अरबी सुवम तक पहुंचे, वो नहवी भी हो, वो सर्फी भी हो, जब अरबी चहारुम में पहुंचे वो अरबी का माहिर हो। अब हमें ये गौर करना है कि क्या वो सलाहियत हमारे अंदर पैदा हुई है या नहीं हुई है। अगर हुई है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं हुई है तो हमें उसके लिए कोशिश करनी है, और उसके लिए कोई अलग से जो है वक्त निकालने की जरूरत नहीं है। रोजाना 5 मिनट आप निकालिए और छोटे छोटे जुमलों से आगाज कीजिए। और देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि उर्दू के बहुत से जुमले वो अरबी के हैं। आपको अगर गुफ्तगू का आगाज करना है, आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहेंगे। ये कौन सा जुमला है? फारसी का या मराठी का? अरबी का। जवाब किस जबान में देंगे? अरबी में देंगे। कैफ़ हालु का हाल ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी अरबी का जुमला है। मस्म का इस्म उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। इस्मी फुलान, जितने नाम है वो सब के सब अक्सर व बेशतर अरबी में होते हैं। तो 3-3-6 जुमले आपके हो गए। उसी में आप इजाफा करते जाइए। एक ही लफ्ज, एक ही जुमले के 10-10 जुमले बनाइए। मस्मु वालिदी का, मस्मु उस्तादी का, मस्मु करियती का, मस्मु मदीनती का, मस्मु जामिआती का, और इस तरह मस्मु दौलती का 10 जुमले हो गए। जवाब 10 जुमले, 20 जुमले आपके वैसे ही तैयार हो गए। इस तरह जब आप रोजाना 5 मिनट का वक्त निकाल के, जिस तरह खाना हमारे लिए जरूरी है उसी तरह अरबी जबान के लिए बोलना जरूरी है। सवाल होता है कि अरबी में बोलना कैसे आएगा? ये किताब लाइए, वो किताब लाइए, ये पढ़िए, वो पढ़िए, नहीं, बल्कि बोलने से बोलना आएगा। जिस दिन आप बोलेंगे उसी दिन आपको बोलना आएगा। तो सब लोग इरादा करते हैं इंशाअल्लाह फारिग होने के बाद सब लोग अरबी में बोलेंगे इंशाअल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह। फारिग होने के बाद बोलेंगे तो अभी से क्या करेंगे? इतनी जोर से इंशाअल्लाह आप लोगों ने बोल दिया, मुझे भी शक होने लगा कि ऐसे ही करना है। अरे कब से करना है? आज से, बल्कि अभी से क्या करना है आप लोगों को? इसका आगाज करना है। तो बहरे कैफ आगाज कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। अपने असातिज़ा से रुजू कीजिए, अपने असातिज़ा से मशवरा लीजिए, निज़ाम बनाइए। ऐसा निज़ाम बनाइए कि जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुआ में जब कोई आए, गेट में दाखिल होते ही ऐसे लगे कि ये कोई हिंदुस्तान का इदारा नहीं है, बल्कि ये आलम अरब का कोई इदारा है, जहाँ बच्चे भी अरबी बोल रहे हैं, जहाँ असातिज़ा भी अरबी बोल रहे हैं, और जहाँ इंतजामिया भी अरबी बोल रही है, सब लोग अरबी बोल रहे हैं। और एक शिकायत होती है कि मौलाना हमारे यहाँ माहौल नहीं है। तो माहौल क्या है? ये माहौल भी उर्दू का नहीं, अरबी का लफ्ज है, माहौल। बात समझ में आ रही है? तो माहौल कैसे बनेगा? दुकान में जाके 10 रुपए का माहौल लाके अपने कमरे में लगाएंगे तो माहौल बनेगा इंशाअल्लाह। ठीक है? अभी भी बहुत से लोग इंशाअल्लाह बोल रहे हैं। कैसे बनेगा माहौल? हमारे बनाने से बनेगा। तो आज से सब लोग इरादा करें इंशाअल्लाह, रोजाना 24 घंटे में 5 मिनट, गरम समोसा खाने में 5 मिनट लग जाता है।
गरम चाय पीने में 5 मिनट लग जाता है, इंशाअल्लाह अरबी के लिए 5 मिनट हम निकालेंगे। अरबी सुअम शहादत तक आपके अंदर इतनी सलाहियत पैदा हो जाएगी कि किसी भी मौजू पर आपके लिए बोलना, किसी भी इबारत को आपके लिए समझना और किसी भी मौजू पर आपके लिए लिखना इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस पर तवज्जो देंगे और आज से जो है इंशाअल्लाह अरबी का माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। सब लोग करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है जो बातें बताई गई हैं उस पर अमल करने की तौफीक।